Hello friends, I am Solushana. I am going to make my second part genetic introduction video. So part 1 is already available on my channel. Uh, Now I am going to make second part. Okay, let's share the screen, share the PPT. Okay, so this was my introductory section of genetics. Part 1 is already completed, which contained by genetic material, which is contained by nucleic acids. What is nucleic acids? Uh, the classification of nucleic acids and address of DNA. So I am going to discuss about part 2, nucleotides and nucleosides contained by nitrogenous base, 5 carbon sugar, phosphoric acid. And after that, the structure and function of DNA and RNA. Right? So this is my part 2 section. So I already discussed about part 1. This is available on my channel. Please watch it, and after that watch my part 2 video. This is part 2 of basic genetics, nucleotides and nucleosides contained by nitrogenous base, 5 carbon sugar, phosphoric acids, structure and function of DNA and RNA. So let's start. So this is the structure of nucleosides and the structure of nucleotides. As you can see, nucleoside is the combination of a nitrogenous base and a 5 carbon sugar structure. And nucleotides are basically made up of nucleoside and phosphate. As I said, nucleoside is base plus sugar, so nucleotide is base plus sugar plus phosphate, right? It is clear. So, uh, ATP, adenosine triphosphate, is a nucleotide or nucleoside triphosphate. Actually, base plus sugar is adenosine, base is adenine, sugar is ribose sugar. So, base plus sugar is adenosine and phosphate groups added to build it as a nucleotide. So base plus sugar plus phosphate, adenosine triphosphate is a nucleotide. So I'm going to the next slide. What is nitrogenous base? Our first content is base. So going to discuss about base. What is nitrogenous base? A nitrogenous base or nitrogen containing base, an organic molecule with a nitrogen atom that has the chemical properties of a base. The main biological function of nitrogenous base is to bond nucleic acids together. It can bind the nucleic acid together and make a long chain. Nitrogenous bases are typically classified into two types, that is purines and pyrimidines, right? That is purines and pyrimidines, right? So at first we have to discuss about purines and the pyrimidines. So we will discuss about those purines and pyrimidines, the classification of nitrogenous base into one slide. And
Also the classification of purines and the pyrimidines member also. So go to the next slide. This is nitrogenous base, which is typically classified into pyrimidines and purines. Pyrimidine structure is six-member structure, two nitrogen is present and four carbon is present. Four carbon and two nitrogen is present to build a structure of pyrimidines. And the purines is nine-member structure. Four nitrogen is present and 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon is present in this structure. So इसमें थोड़ा अच्छे से गौर कीजिए कि ये पायरामिडिन का स्ट्रक्चर जो है वो आता है प्यूरिन का स्ट्रक्चर से। अगर प्यूरिन का स्ट्रक्चर में ये वाला सेकेंड साइकिल को सेकेंड रिंग को अगर इरेज कर देते हैं तो दो नाइट्रोजन फोर कार्बन कंटेनिंग एक बेस मिलेगा जो कि पायरामिडिन्स का बेस है, पायरामिडिन्स का स्ट्रक्चर, राइट। So in the family of pyrimidines, cytosine, uracil and thymine are belonging, and adenine and guanine are belonging in the family of purines, right? So हम लोग कैसे याद रखेंगे कि कौन पायरामिडिन्स का स्ट्रक्चर है, कौन सा प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर है? इसका एक इजी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। I'm saying basically tricks. It is a tricks. So pyrimidines. Pyrimidines इधर थोड़ा गौर कीजिए कि पायरामिडिन का स्ट्रक्चर छोटा है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर बड़ा है। कैसे याद रखेंगे कि कौन सा पायरामिडिन का स्ट्रक्चर है, कौन सा प्यूरिन का स्ट्रक्चर है? तो हमको याद रखना पड़ेगा कि पायरामिडिन का नाम बड़ा है पर स्ट्रक्चर छोटा है, प्यूरिन का नाम छोटा है पर इसका जो स्ट्रक्चर है, जो कि ये स्ट्रक्चर बड़ा है क्योंकि इसमें दो रिंग आता है, राइट। ये है प्यूरिन का स्ट्रक्चर और पायरामिडिन का स्ट्रक्चर में एक ही साइकिल आता है। सो पायरामिडिन का नाम बड़ा है, स्ट्रक्चर छोटा है, प्यूरिन का नाम छोटा है, स्ट्रक्चर बड़ा है, राइट। सो अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग कैसे याद रखेंगे कि कौन कौन पायरामिडिन में बिलोंग करता है, कौन कौन प्यूरिन में बिलोंग करता है? इसका भी एक इजी ट्रिक है, मैं बताने वाला हूँ। तो प्यूरिन में नाइन मेंबर स्ट्रक्चर है प्यूरिन। तो as you can see, adenine and guanine are belonging into the purine group. So adenine, guanine ये दोनों में ही 9 है, adenine and guanine. So 9 member structure is adenine, guanine. तो 9 होना चाहिए। ये एक ट्रिक्स है, ये कोई थ्योरी नहीं है। तो अभी कैसे याद रखेंगे कि पायरामिडिन को कैसे याद रखेंगे कि साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन आर बिलोंगिंग इनटू द फैमिली ऑफ पायरामिडिन। ये याद रखने के लिए हमको एक चीज गौर करना पड़ेगा कि हम लोग अगर ये सेकंड रिंग को 7, 8, 9 को कट कर देते हैं तो हमको मिलेगा पायरामिडिन का स्ट्रक्चर, दो नाइट्रोजन 4 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर। सो हमको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। प्यूरिन को कट करने से पायरामिडिन आता है। सो कट, CUT, so C for cytosine,
U for uracil, and T for thymine. So I think this is easy way to remember those classifications. So अभी साइटोसिन का स्ट्रक्चर, यूरासिल का स्ट्रक्चर एंड थायमिन का स्ट्रक्चर में क्या फर्क आता है? As you can see, 4 amino 2 oxypyrimidine, 4 amino, 4 किधर है? एक नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन 1 है, सेकंड नाइट्रोजन जो है वो 3 पे जाएगा, तो ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है. So 4 amino, 1 2 3 4, 4 amino 2 oxypyrimidine. जस्ट पायरामिडिन का स्ट्रक्चर में फोर्थ पोजीशन में एमिनो जाएगा और 2 पोजीशन में ऑक्सी ग्रुप जाएगा. बस ये हो गया साइटोसिन का स्ट्रक्चर. 2,4 डाइऑक्सीपायरामिडिन इज यूरासिल. 2,4 डाइऑक्सीपायरामिडिन, 2 और फोर्थ पोजीशन ऑक्सीजन रहेगा, बाकी सारा एक ही रहेगा. Of thymine, in case of thymine, 2,4-dioxy जो हम लोग यूरासिल में देखा, 5-methyl pyrimidine. तो 2,4 तो ऑक्सीजन डाल ही दिया यूरासिल में. अभी यूरासिल का स्ट्रक्चर में अगर मैं 5 यानी कि 5th पोजीशन में CH3 ग्रुप डाल देते हैं, मिथाइल ग्रुप डाल देते हैं, तो ये हो जाता है थायमिन का स्ट्रक्चर. राइट. अभी प्यूरिन्स में क्या है कि 6 amino purines is adenine. 6 amino purines is adenine. So 6 amino. तो इधर स्ट्रक्चर कैसे काउंट होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 6 पोजीशन में एमिनो ग्रुप चलते हैं. So in the next, guanine. Guanine is 2 amino 6 oxypurine. 2 किधर है? 1 2. 2 में एक कार्बन है, ये कार्बन के साथ आपको डालना पड़ेगा NH2 ग्रुप यानी कि एमिनो ग्रुप, और ऑक्सी है 6 पे. तो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सी प्यूरिन. तो हम लोग सीख गए कि पायरामिडिन क्या है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर क्या है, और इनमें कौन कौन बिलोंग करता है, और इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग कि कौन पायरामिडिन के फैमिली में बिलोंग करता है और कौन प्यूरिन के फैमिली में बिलोंग करते हैं, ये हम लोगों को पता चल गया. सो I am going towards the next slide. नेक्स्ट स्लाइड. हमको जानना पड़ेगा कि इधर जो हम 500 nitrogenous bases देखा हूं, 5 nitrogenous bases are there which contain DNA, which contain RNA. So DNA, this is the structure of DNA, this is the structure of RNA. RNA is single helix and DNA is double helix. Helix is nothing but the backbone chain made up of 5 carbon sugar and phosphoric acid, and the bases are in between of those helixes. So DNA is made up of cytosine, uracil, adenine and thymine. Adenine and guanine is purine. Cytosine and thymine are pyrimidines. So RNA में cytosine रहता है, guanine present है, adenine present है. Instead of thymine, there is uracil present.
तो यही फर्क है डीएनए और आरएनए। और आरएनए सिंगल हेलिक्स है, डीएनए डबल हेलिक्स है। So going to the next slide, 5 carbon sugar, our next element। हम लोग नाइट्रोजनस बेस के बारे में सीख गए। अब हमको जानना है कि ये जो 5 कार्बन शुगर है, डीएनए में कौन सा शुगर रहता है और आरएनए में कौन सा शुगर रहता है, राइट? So this is basically the structure of 5 carbon sugars. One is uh, deoxyribose sugar, one is ribose sugar. As I said previously, RNA ribonucleic acid is contained by ribose sugar. So this is ribonucleic acid. And as because DNA deoxyribonucleic acid made up of deoxyribose sugar, that's why this is DNA, यानी कि deoxyribonucleic acid। So क्या फर्क आता है ये डीएनए और आरएनए? 5 carbon sugar is basically pentose sugar। So in the family of pentose sugar there are so many sugars, but ribose sugar is important to our genetics because ribose sugar contained a structure of RNA, and in the case of DNA deoxyribose sugar। So इसमें 5 कार्बन तो रहेगा ही, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। इधर भी कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 5। So difference is here, the second position, second carbon is attached to the H in case of deoxyribose sugar. In the case of ribose sugar, 2 and 3 both are attached with OH group. So instead of second OH group, H is present, hydrogen, only hydrogen is present in the structure of deoxyribose sugar, is for the increase of stability of DNA। DNA का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है और ये डबल हेलिक्स होता है, इसलिए हाइड्रोजन ये OH ग्रुप के जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। So this was the description of 5 carbon sugar, which is ribose sugar and deoxyribose sugar। So go to the next slide. This is phosphoric acid. It is too easy to remember. This is phosphoric acid group। So I think इधर कुछ कहने के लिए कुछ है नहीं, ये बहुत इजी है याद रखना कि एक फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है। So go to the next slide, the summary of nucleosides and nucleotides। ये ध्यान से देखिए कि एक नाइट्रोजनस बेस और एक 5 कार्बन शुगर कंटेन किया एक न्यूक्लियोसाइड। इधर याद रखना कि इधर हम लोग आर दिए हैं क्योंकि इधर OH भी हो सकता है, H भी हो सकता है। अगर OH हो गया तो ये होगा डीऑक्सीराइबोस शुगर। इधर इधर अगर H हुआ तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, इधर अगर OH हुआ तो ये हो जाएगा राइबोस शुगर। तो राइबस या डीऑक्सीराइबोस जो भी रहे, एक बेस के साथ एक 5 कार्बन शुगर अटैच हो गया मतलब वो न्यूक्लियोसाइड है। क्लियर?
उसके बाद एक भी फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप, एक भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो वो होगा न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। दो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। तीन अटैच होगा तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। दोस आर एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, यानी ये बोलना पड़ेगा कि एटीपी एक न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट है, क्योंकि एडिनोसिन इज न्यूक्लियोसाइड, बट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आर न्यूक्लियोटाइड्स, राइट? So I hope you got it because it is very easy. So I am going towards the next slide. Next slide. Nitrogenous base, ribonucleoside, deoxyribonucleoside. In the previous slide, हम लोग ये जान गए कि एक भी फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप अटैच होता है तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में। तो फॉस्फेट ग्रुप तो कोई भी न्यूक्लियोसाइड के साथ रह सकता है, पर न्यूक्लियोसाइड एक राइबोस शुगर के प्रेजेंट में हो सकता है, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर के प्रेजेंट में हो सकता है। तो अभी बात करने जा रहा हूं कि राइबोस शुगर के प्रेजेंट में कौन कौन न्यूक्लियोसाइड आता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक डीऑक्सीराइबोस शुगर के प्रेजेंट में कौन कौन न्यूक्लियोसाइड आता है। तो एट फर्स्ट दिस इज एडिनिन ग्रुप। दिस इज एडिनिन, एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। ये एडेनिन ग्रुप अगर एक एक शुगर के साथ ऐड होता है तो वो क्या होता है, राइबो न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड ये तो होगा ही, पर राइबो शुगर के प्रेजेंट में राइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबो शुगर के प्रेजेंट में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। अभी ये देखिए कि ये राइबो शुगर है, ये एक राइबो शुगर का स्ट्रक्चर है, पर ये एक OH ग्रुप है और इधर H है, तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस एडेनिन हो जाता है डीऑक्सी एडिनोसिन, और राइबोस शुगर और एडेनिन के कॉम्बिनेशन से बनता है एडिनोसिन ग्रुप। तो गुआनिन, in case of guanine, this is the structure of guanine as I said previously. गुआनिन और राइबोस शुगर के प्रेजेंट में होता है गुआनोसिन। गुआनिन और डीऑक्सीराइबोस शुगर के प्रेजेंट में होता है डीऑक्सीगुआनोसिन। इज इट क्लियर? So those are actually the ribonucleoside and deoxyribonucleoside of purines group। प्यूरिन ग्रुप के साथ अटैच होकर क्या फॉर्म करते हैं। अभी हम देखेंगे कि पायरामिडिन का भी ऐसा होता है। पायरामिडिन के साथ राइबोस और डी राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर अटैच होकर क्या फॉर्म करता है। तो एक्चुअली दिस इज थाइमिन, दिस इज द थाइमिन स्ट्रक्चर। those all are pyramidal structure, CUT, cut, cytosine, uracil and thymine, pyramidal का स्ट्रक्चर। तो एक पायरामिडिन के साथ, एक थाइमिन के साथ एक राइबोस शुगर ऐड हो गया, फिर इधर एक थाइमिन के साथ एक
डीऑक्सी राइबोस शुगर ऐड हो गया तो फॉर्म किया थाइमिडिन। यूरासिल का स्ट्रक्चर है, यूरासिल के स्ट्रक्चर के साथ एक राइबोस शुगर ऐड हो गया तो फॉर्म किया यूराडीन, यूरिडीन। एक यूरासिल ग्रुप के साथ ही एक डीऑक्सीराइबोस शुगर ऐड हो गया तो ये फॉर्म करता है डीऑक्सी यूरिडीन, डीऑक्सी यूरिडीन। साइटोसिन, इन केस ऑफ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ एक राइबोस शुगर ऐड हो गया तो फॉर्म करता है साइटिडीन, साइटिडीन with the presence of ribose sugar with the structure of cytosine फॉर्म करता है साइटिडीन। एंड एक नाइट्रोजनस बेस, एक पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन, उसके साथ अगर एक डीऑक्सीराइबोस शुगर अटैच हो गया तो वो फॉर्म करता है डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन। तो हम लोगों को पता चल गया कि कैसे कैसे न्यूक्लियोसाइड आता है, कैसे कैसे न्यूक्लियोसाइड राइबो न्यूक्लियोसाइड आता है, कैसे कैसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड आता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड क्या है। नेक्स्ट स्लाइड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। There are three structure of DNA. This is space filling model of DNA. This is key features of DNA structure कि इसके साथ कौन अटैच हो सकता है। एक पायरामिडिन के साथ एक प्यूरिन ही अटैच हो सकता है, गुआनिन और साइटोसिन। साइटोसिन इज अ पायरामिडिन, गुआनिन इज अ प्यूरिन। एक प्यूरिन एक पायरामिडिन के साथ ही अटैच हो सकते हैं। एडेनिन is a pyrimidine, thymine is a purine। एक पायरामिडिन के साथ एक प्यूरिन ही अटैच हो सकता है। अभी जी भी एक पायरामिडिन है, ए भी एक पायरामिडिन है। अगर हम लोग इसको एक्सचेंज कर देते हैं तब क्या ये फॉर्म करेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि गुआनिन सिर्फ सी के साथ ही बाइंड कर सकता है। गुआनिन सिर्फ साइटोसिन के साथ ही बाइंड कर सकता है। कैसे? ऐसे एक गुआनिन एक साइटोसिन के साथ बाइंड किया, एक एडेनिन एक थाइमिन के साथ ही बाइंड कर सकता है। कैसे? ऐसे बाइंड किया। सो इसको की फीचर कैसे क्यों बोला जाता है कि एक लॉक का एक की होता है, एक की फॉर्म होता है एक लॉक के लिए, लॉक एंड की। सो दिस इज लाइक दैट। एडेनिन सिर्फ थाइमिन के साथ ही बाइंड कर सकता है, गुआनिन सिर्फ साइटोसिन के साथ ही बाइंड कर सकता है। सो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। This is ribonucleic acid or RNA. So we previously discussed about it. RNA is typically classified into messenger RNA, transfer RNA, and ribosomal RNA. So this is messenger RNA, this is transfer RNA, and this is ribosomal RNA. So abhi messenger RNA. What is the importance of messenger RNA? To carry a message, a genetic message from RNA. Transfer RNA. It transfers the activated amino acids in the site of protein formation. जब प्रोटीन फॉर्म हो रहा है उधर ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए ये है, टी के जैसा पैटर्न है ट्रांसफर आरएनए। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये स्ट्रक्चर टी आरएनए नहीं है, ये स्ट्रक्चर है
राइबोसोम का, इसमें राइबोसोमल आरएनए रहते हैं. As I said previously, ribosomal RNA, the main feature, the main function of ribosomal RNA is to provide the support stability of messenger RNA. मैसेंजर आरएनए अगर आया तो उसको एक स्पेस देना पड़ेगा, उसको एक सपोर्ट देना पड़ेगा. वो सपोर्ट देता है rRNA. Ribosomal RNA mostly present into ribosomes, right? And tRNA transfers the activated amino acid to the protein binding site, and इधर एक चेन फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रोइंग पेप्टाइड चेन. those are actually peptide chain. इसके अंदर एक पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये था मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए का डिस्क्रिप्शन कि ये क्या होता है. So messenger RNA is directly formed from the DNA. It is synthesized by DNA, and messenger RNA carries the message to the ribosome from the RNA, and the transverse RNA transfers the activated amino acid to the protein binding site, यानी कि ribosomes in presence of messenger RNA. एंड ये जो अटैच्ड फंक्शन है ये बाइंड कर रहा है, ये अभी एक प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है. तो मैसेंजर आरएनए में क्या रहता है, मैसेंजर आरएनए में रहते हैं कोडन्स, ऐसे ऐसे ई यू सी जी, यू सी जी. इज इट विजिबल? Is it visible? UCG. Those are codon. This is a codon. UCG. At the time, a codon. So transfer RNA bring a anticodon of this. ट्रांसफर आरएनए लाया है AGC, क्योंकि A U के साथ बाइंड कर सकता है, C G के साथ एंड G C के साथ. ऐसे एंटीकोडन्स लाता है ट्रांसफर टीआरएनए, राइट. सो अभी कैसे प्रोटीन फॉर्मेशन करता है ये समझने के लिए मुझे और एक वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा और एक वीडियो बनाना पड़ेगा. सो ये मैं बात में करूंगा कि कैसे ये सब बिल्ड करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा ऑब्वियसली. So I am now going towards the next slide. This is messenger RNA. As I said, कि messenger RNA में कोडन रहता है, तीनों मिलके एक कोडन होता है, GCU अकोडन, ACG अकोडन, GAG कोडन 3, CUU कोडन 4, CGG कोडन 5, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऐसे बहुत कोडन्स रहता है ए माने में. अब इसको बाइंड करने के लिए मुझे क्या लगेगा, एंटीकोडन. तो एंटीकोडन कौन लाएगा, ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडन लाएगा, पर ये एंटीकोडन और कोडन बाइंड करेगा कहां, इनटू द राइबोसोम. तो आपको कौन बेस दे रहा है, बेस दे रहा है राइबोसोम. सो राइबोसोमल आरएनए गिविंग द सपोर्ट, giving the stability of messenger RNA to bind a protein. So go to the next slide. As you can see easily, GCC, a codon, which is present into a messenger RNA. This is a messenger RNA, and this is a anticodon. This is a tRNA. tRNA bringing its anticodons to bind together. C G के साथ बाइंड किया, G C के साथ, G C के साथ. सो अगर हमारा कोडन GCC है तो एंटीकोडन होना चाहिए CGG, राइट. अगर GCC कोडन है तो उसके लिए हमारा होना चाहिए
CGG। तो बाइंड करता है इससे। देखिए कि इधर भी टीआरएनए में भी सम इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग रहता है। कैसे फॉर्म करता है? जी सी के साथ, ए यू के साथ, जी सी के साथ, जी सी के साथ, जी सी के साथ। देखिए ये भी सब एक दूसरे के साथ बाइंड करता है, वही एक ही प्रॉपर्टीज मेंटेन करके कि जी सी के साथ बाइंड कर सकता है, सी जी के साथ बाइंड कर सकते हैं, ए यू के साथ बाइंड कर सकता है, यू ए के साथ बाइंड कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टीज फॉलो करके ये सब बाइंड कर रहा है। और इधर एज यू कैन सी स्टार बॉन्ड एंड दिस इज अमीनो एसिड। एक्चुअली ट्रांसफर RNA transfers the activated amino acid, those are activated amino acid transferred towards the ribosome, right? The mm, protein formation site. So this was my presentation today. अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना to support my initiative, to encourage my initiative. So let's thank you. फिर मिलते हैं कोई और सेशन लेके। तब तक के लिए घर पे रहना, stay at home, stay safe, your family, and save your country, save our country. So goodbye.